Welcome to DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor. It's a digital initiative by the Directorate of School Education, Jammu. As you all know, I'm Kamaljeet Kaur, presently working as a master in the School Education Department. My today's geography class is for class 10th and I'll be taking up the 7th chapter, Lifelines of National Economy. This is the second video of this chapter. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वाटरवेज, एयरवेज, कम्युनिकेशन, टूरिज्म एज ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वाटरवेज की। फीचर्स ऑफ वाटरवेज। एक फीचर है कि हम बहुत पुराने टाइम से वाटरवेज को यूज कर रहे हैं आने जाने और ट्रेड दोनों के लिए। The next is waterways are the cheapest mode of transportation. एक बड़ा सा शिप हो और उसमें फ्यूल डाल लो और उसमें बहुत सारा सामान आप एक जगह से दूसरी जगह cheapest way में लेके जा सकते हैं। Another feature is it is fuel efficient and environment friendly. And the last feature of waterways is it is suitable for carrying heavy and bulky goods. आप तो animals तक को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वाटरवेज से। इवन एलिफेंट्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू waterways. Now let us discuss about some inland waterways in India. There are 5 important waterways: NW1, NW2, NW3, NW4 and NW5. So let's talk about National Waterway 1 यानी कि NW1. इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं, जो कि यूपी में है, उसको कनेक्ट करता है हल्दिया से, जो कि गुजरात में है, और इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर्स। इनलैंड मतलब जो लैंड के अंदर है, यानी कि इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ये वाटरवे बना हुआ है। फिर है नेशनल वाटरवे 2 NW2, a section of the Brahmaputra river having a length of 891 kilometers between the Bangladesh border near Dhubri and Sadia in Assam. Third is National Waterways 3. It is in West Coast Canal in Kerala and runs from Kollam to Kottapuram, and it is about 205 kilometers in length. Then National Waterways 4 is a 1095 kilometer long waterway in India. It connects the states of Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry. Then National Waterways 5, it covers the state of Odisha and part of West Bengal. It runs a total length of 623 kilometers. Now there are 13 major ports and 187 minor ports in India. First is the Kandla port in Gujarat. It is a tidal port. और tidal ports कौन से होते हैं? जहां हम सी की वेव्स की एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ये पहला पोर्ट है जो इंडिपेंडेंस के बाद बना था, और ये इसलिए बना था क्योंकि हमने जो कराची पोर्ट है वो पाकिस्तान को दे दिया था जब पार्टीशन हुआ था, और मुंबई पोर्ट पे बहुत प्रेशर हो गया था, इसलिए कांडला पोर्ट बनाना पड़ा। उसके बाद है मुंबई पोर्ट. इट इज अ वेरी बिग पोर्ट एंड लॉट्स ऑफ ट्रेड गोज ऑन थ्रू दिस पोर्ट. It is a natural and the oldest port. Then there is the Margao port in Goa, which is very important in terms of iron export. Almost 50% of iron export is done through this port. Iron export is also done through Mangalore port and Paradweep port in Odisha. Iron is exported to Japan through Paradweep port. Now let's talk about the Kolkata port. ये एक रिवरलाइन पोर्ट है, मतलब गंगा यमुना वाटर्स इनको केटर करता है। ईस्ट साइड का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। कोलकाता पोर्ट पर प्रेशर बहुत बढ़ गया था, इसलिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया था। कोलकाता पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए ये जो हल्दिया पोर्ट बनाया गया था।
Now, Vishakhapatnam is the deepest artificial and very well protected port. Chennai port is the oldest and artificial port. उसके बाद सदर्न एक्सट्रीम में है कोचिन पोर्ट और साउथ ईस्टर्न में है ट्यूटिकोरिन पोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के साथ ट्रेड करने के लिए. That was all for waterways. Now let's talk about airways. पहले हम डिस्कस करते हैं उसके मेरिट्स. फर्स्ट, it is the fastest mode of transport, most comfortable and the most prestigious mode of transport. It covers very difficult terrains with ease. मतलब जमीन पे रिवर है, सी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एयर से ही जाना है. तो हम कह सकते हैं कि हम डिफिकल्ट टेरेन में भी एयर सर्विस यूज कर सकते हैं. Now let's talk about the demerits. Now talking about costs, air travel is not pocket friendly. आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है और इसमें लगेज भी लिमिटेड लेके जा सकते हैं. एक्स्ट्रा लगेज लेने की भी लिमिट होती है और इसके चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं. Now air transport was nationalized in India in 1953. Now you must be thinking, what is nationalized? Nationalized means उस पे नेशन की अथॉरिटी आ गई, एक पब्लिक अंडरटेकिंग आ गई. एक बात और मैं बताना चाहूंगी पवन हंस हेलीकॉप्टर्स के बारे में. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड provides services to ONGC यानी कि Oil and Natural Gas Corporation in its offshore operations to inaccessible areas and difficult terrains of northeastern states and interior parts of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. अब ये जो एयर सर्विसेज हैं इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक है डोमेस्टिक सर्विसेज और एक है इंटरनेशनल सर्विसेज. Now when you have to travel inside your country, for example Delhi to Mumbai, Mumbai to Kolkata, that is within the boundaries of India, it is called domestic services. Domestic services में बहुत सारी एयरलाइंस हैं, जैसे कि इंडियन एयरलाइंस है, अलायंस एयर, प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइंस हैं एंड नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स हैं. Now when you have to travel from India to other countries like Dubai, UK, etc., then we use international services. इसमें एयर इंडिया का बहुत नाम है और इसके अलावा और भी बहुत सारे एयरलाइंस हैं. Now the later part of the chapter is communication, transport and communication. Now you must be thinking, what is communication? Communication is an act of exchanging information or change of ideas between people. Communication can be of any form, personal communication or mass communication. When I share ideas with my friends, it is personal communication. When it is communicated to many people, it is mass communication. Like I'm communicating my ideas to so many people through this media. Also short distance and long distance communication भी होता है. अगर डिस्टेंस कम है और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वह है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन. और अगर डिस्टेंस ज्यादा है या आप ओवरसीज कॉल कर रहे हैं तो वह है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन पार्ट में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. एक है इंडियन पोस्टल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज इन इंडिया और तीसरा है mass communication. Now let's talk about Indian Postal Network. Indian Postal Network is the largest postal network in the whole world. It is handled by the Department of Post under Ministry of Communication and Information Technology. इसमें आप सब कुछ पार्सल कर सकते हो, गुड्स भी पार्सल कर सकते हो, रिटर्न कम्युनिकेशन भी पार्सल कर सकते हो, जैसे कि लेटर, पोस्ट कार्ड या टेलीग्राम. प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा कम होता है, जैसे फर्स्ट क्लास में होता है और सेकंड क्लास मेल होता है. और जैसे आपको कोई पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर और एनवेलप्स भेजने हैं तो वो फर्स्ट क्लास प्रायोरिटी में आएंगे. और ये लैंड रूट भी ले सकते हैं और एयर रूट भी ले सकते हैं. सेकंड क्लास मेल ऑन द अदर हैंड इज सेकंड इन प्रायोरिटी.
बुक पैकेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स अगर आपको भिजवानी है तो सेकेंड क्लास मेल में आएंगी। सेकेंड क्लास मेल या तो लैंड रूट लेगा या वाटर रूट लेगा, एयर नहीं लेगा। आपको इंडिया में टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में बताया। इंडिया में आजकल किसी के पास भी एक मोबाइल नहीं है, सबके पास दो मोबाइल है। इसलिए हमारा जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो भी बहुत एक्सटेंसिव है। गवर्नमेंट ने एसटीडी यानी कि सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी शुरू की थी, सो दैट एक स्टैंडर्डाइज्ड रेट पे हम फोन कर सकें 24/7, यानी कि किसी भी दिन किसी भी वक्त। स्टैंडर्डाइज्ड रेट का क्या मतलब है? यानी कि यूनिफॉर्म रेट। मतलब मुझे दिल्ली से कॉल करना है, बैंगलोर या अमृतसर से कॉल करना है चेन्नई, एक स्टैंडर्ड रेट होगा पर मिनट का। Static landline and mobile services have improved to ensure faster personal communication. अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम धीरे धीरे लैंडलाइन से एसटीडी और एसटीडी से मोबाइल फोन्स पे आ गए हैं। इस टेक्नोलॉजिकल चेंज से हम बहुत ज़्यादा फास्टर मोड्स यूज करने लग गए हैं। कितनी सारी एप्स आ गई हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं। सो ऑल दीज इंश्योर फास्टर पर्सनल कम्युनिकेशन। अब जो थर्ड चीज है कम्युनिकेशन में, जिसे हम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, वो है मास कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? If I am transferring knowledge to a lot of people as on this platform, that is known as mass communication. It provides entertainment, creates awareness among people about national programs and policies. सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मास कम्युनिकेशन से। कहाँ से मिलती है? रेडियो से, टेलीविजन से, न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से, मैगजीन से, बुक्स से और फिल्म से। इंडिया में अगर बात करें तो टेलीविजन और रेडियो में ऑल इंडिया रेडियो है, जिसे हम आकाशवाणी बोलते हैं। इसके थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन नेशनल, रीजनल और लोकल लैंग्वेजेस की मिलती है। इसके अलावा टेलीविजन पे दूरदर्शन आता है, जिसे हम नेशनल चैनल भी बोलते हैं, और इसमें भी हमें एंटरटेनमेंट भी मिलता है, नॉलेज भी मिलती है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। इसके बाद आते हैं न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स एंड मैगजीन्स। हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और यहाँ 100 से भी ज्यादा न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और रीडरशिप तो इतनी बड़ी है कि सबसे ज्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस की इंडिया में न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं। अब जब हम फिल्म्स की बात करते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना कुछ है, बॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, रीजनल फिल्म्स हैं, नेशनल फिल्म्स हैं, हिंदी फिल्म्स हैं, बंगाली फिल्म्स, पंजाबी फिल्म्स, सब डिफरेंट वेराइटीज की फिल्म्स यहाँ प्रोड्यूस की जाती हैं। ऑल्सो वी हैव अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि हर फिल्म को मार्केट में आने से पहले सर्टिफाई करता है। आपने देखा होगा कि मूवीज शुरू होने से पहले लिखा आता है U/A या A, तो इसका मतलब क्या होता है? कभी सोचा है आपने? इसका मतलब होता है अंडर अडल्ट या फिर अडल्ट, कि कौन सी मूवीज अडल्ट के देखने के लायक है और कौन सी मूवीज बच्चों के देखने के लायक है। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये डिसाइड करता है कि ये फिल्म किस एज ग्रुप के लिए बनी है, उसी हिसाब से वह उसको सर्टिफाई करता है। So this is all about communication. And one more thing I want to tell you, India has the largest telecom network in the world. अब चलते हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक की तरफ, वो है इंटरनेशनल ट्रेड। Exchange of goods among people within states and countries is called as trade. And if the same goods are exchanged among different countries, it is called as international trade. So we can say that exchange of goods, services and people between two countries is known as international trade. अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं।
अगर मैं कुछ मंगवा रही हूँ दूसरी कंट्री से, उसे हम इंपोर्ट कहेंगे, बिकॉज आई एम कॉलिंग इट इन। एक्सपोर्ट इज जब मैं अपनी कंट्री से कुछ बाहर भेज रही हूँ, यानी कि गोइंग आउट। सो इंपोर्ट इज फॉर कमिंग इन एंड एक्सपोर्ट इज फॉर गोइंग आउट। Now, what is balance of trade? It is the difference between how much is exported and how much is imported. So obviously, अगर मैं दूसरी कंट्री से ज्यादा गुड्स इंपोर्ट कर रही हूँ या मंगवा रही हूँ, तो इसका मतलब मेरी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो वो होगा नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं भेज ज्यादा रही हूँ या एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही हूँ दूसरी कंट्री में और इंपोर्ट कम कर रही हूँ, तो वो होगा पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड या फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि 1991 में एलपीजी पॉलिसी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके थ्रू हमने ट्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। उसके बाद से जो ट्रेड का पूरा फेज है वो चेंज हो गया। अब तो टेक्नोलॉजी के साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज तो कम इंटरनेशनल ट्रेड में देखने को आते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हमें ज्यादा दिखती है। इंडिया तो इतना ज्यादा बड़ा जायंट बन के निकला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। कभी आपने सोचा है क्यों? बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स, राइट? अब इसके बाद एक्सपोर्ट शेयर और इंपोर्ट शेयर की बात करते हैं। एक्सपोर्ट शेयर जो एग्रीकल्चर का है 8.64%, जेम्स एंड ज्वेलरी का ज्यादा है 17.02%, एंड वी आर ऑल्सो गुड एट इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑल्सो केमिकल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच इज 12.06%। एंड नाउ इंपोर्ट शेयर, जो हम मंगा रहे हैं अपनी कंट्री में, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है 22.4%, उसके बाद है जेम्स एंड ज्वेलरी 12.8%, देन केमिकल्स है 9.76%, मशीनरी है 8.9% और एग्रीकल्चर का बहुत कम है 5.84%। इसमें तो आपको पता है, जैसे हमने एग्रीकल्चर लेसन में मैंने बताया था कि हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट हैं। अब लास्ट टॉपिक, टूरिज्म एज ट्रेड। टूरिज्म हमारी कंट्री में बहुत पहले से फेमस है। कब से हम लोग टूरिज्म कर रहे हैं? हम इंटरनल टूरिज्म भी करते हैं, जैसे दिल्ली से कश्मीर या जम्मू से मनाली, दैट इज नोन एज इंटरनल टूरिज्म। और इसके अलावा इंटरनेशनल टूरिज्म भी होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेड इन इंडिया। Now, tourism in India has grown from past 3 decades. बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है टूरिज्म में, स्टेट टूरिज्म भी और ओवरऑल इंडिया में भी टूरिज्म की बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल हैज इंक्रीज्ड। हर साल हम देखते हैं कि फॉरेन टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। बहुत पैसा आता है टूरिज्म से। कुछ स्टेट्स का तो प्राइमरी इकोनॉमिक फैक्टर है टूरिज्म। इसके साथ फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है। जब इतने सारे लोग आ रहे हैं फॉरेन से, तो नेचुरल है कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और ये लोग हमारा कल्चर देखते हैं, मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, इको टूरिज्म के लिए आते हैं, तो इससे हमारे टूरिज्म को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलती है। अब टूरिज्म के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला है, इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब नॉर्थ के लोगों को साउथ के लोगों का कल्चर नहीं पता है, लेकिन टूरिज्म के थ्रू जब वे साउथ घूमने जाएंगे तो उनको वहां का कल्चर, फूड वगैरह के बारे में पता चलेगा और ये अच्छा भी लगेगा उनको। इससे नेशन की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी बढ़ रही है। Now it provides support to local handicrafts and cultural pursuits. जब साउथ के लोग कश्मीर घूमने आते हैं तो वहां के वे लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कुछ यादगार के तौर पे या तोहफे देने के लिए या एज मेमोरीज ये इन्हें लेके जाते हैं। तो इससे जो लोकल आर्टिजन्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है
और वहाँ का कल्चर भी साउथ के लोगों को जानने को मिलता है। Third point is it helps in the development of international understanding about our culture and heritage. जब बाहर से लोग हमारी कंट्री में आते हैं तो उनके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। फॉरेनर्स को लगता है कि इंडिया इज स्टिल अ बैकवर्ड और अ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री, बट जब वो इंडिया में आके हमारा कल्चर और हेरिटेज देखते हैं तो उनके व्यूज एकदम बदल जाते हैं। दे गेट इम्प्रेस्ड बाय अ कल्चर एंड हेरिटेज। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हैं हमारी कंट्री में, जैसे राजस्थान, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर एंड द टेम्पल टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया। Foreign tourists visit India for heritage tourism, ecotourism, medical tourism and adventure tourism. एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूंगी, why are efficient means of transport and communication prerequisites for the fast development of the country? तो इसका ये आंसर है, movement of goods and services from their supply locations to demand location necessitates the need for transport. The pace of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement. Therefore, efficient means of transport and communication are prerequisites for fast development of a country. I hope आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा. And that's all for today. Have a nice day.